Hello. So let's discuss this IPMAT Indore 2024 quant section, subjective one, right? So let's begin with the first question. The number of factors of 1800 that are multiple of 6. So basically, what we need to do is we need to find all the factors of 1800, but there is a condition. They should be a multiple of 6. So let us do one thing. First of all, just make sure कि हम जो भी इनके factors लिखने वाले हैं, they should be a multiple of 6. So for that, what we can do is simply इधर से 6 अपन अलग कर लेते हैं and the remaining 300 हम यहाँ लिख लेते हैं. Now see, ये 6 हमने अलग कर लिया है just to make sure that any factor which is coming now is definitely a multiple of 6 only. Why? Because we are multiplying it by 6. Now we just need to find the number of factor of 300 and we are done. Now, before going ahead, you must be knowing the formula to find the total number of factors of any number. Now, the suppose number is given by x raised to power a multiplied with y raised to power b further multiplied with z raised to power c. So, the total number of factors in this case will be a plus 1 multiplied with b plus 1 further multiplied with c plus 1. तो बेसिकली क्या होता है, जो पावर्स होती हैं उसमें प्लस वन करके मल्टीप्लाई किया जाता है. और ऐसा क्यों किया जाता है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है जिसमें समझाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं. आप एक बार उसको जरूर देखें. तो यहां से आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स a प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन. ठीक है. यहाँ पर 6 को अलग करने का लॉजिक इज just to make sure कि every multiple now every number now will be a multiple of 6 only. जो भी फैक्टर्स हमको यहाँ से मिल रहे हैं वो डेफिनेटली 6 के मल्टीपल होने वाले हैं बिकॉज हम 6 से मल्टीप्लाई कर. फाइन. नाउ दिस 300 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2 multiplied with 3 raised to power 1 further multiplied with 5 raised to power 2 एंड 6 हमने अलग कर रखा है. इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि हम बात करें तो दैट विल बी पावर इज 2 सो इट विल बी 2 प्लस 1. यहाँ पे पावर 1 है, इट विल बी 1 प्लस 1. यहाँ पर अगेन पावर इज 2 सो इट विल बी 2 प्लस 1. इसको मल्टीप्लाई करने में विल गेट 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 18. अब ये जो भी 18 फैक्टर्स आ रहे हैं क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑल दीज आर डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 6. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 18. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में. इनफैक्ट काफी इजी क्वेश्चन थे. So, a fruit seller has oranges, apples, and bananas in the ratio 3:6:7. If the number of oranges is a multiple of 5 and 6, see, 5 and 6 दोनों का multiple होना imply करता है कि वो जो भी नंबर होगा उसको 30 का multiple होना पड़ेगा. For a number to be a multiple of 5 and 6, it is implied that it has to be a multiple of 30. So ये oranges जितने भी हैं ये 30n की फॉर्म के होने वाले हैं. 30 into something, 30 के मल्टीपल्स में जाने वाले हैं. And then we need to find the minimum number of fruits that the seller has. Okay, यदि ये 30n है, so since the ratio is 3:6:7, so it must be 60n. यहाँ पर 70n हो जाएगा. अब क्योंकि हमको मिनिमम करना है तो हम n is any integral value, n can assume any integral value, n is some integer, right? कोई सा भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, इट इज एन इंटीजर. तो ठीक है ना, यदि मिनिमाइज करना है तो अज्यूम n टू बी 1 ओनली. इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता है. सो अज्यूमिंग n टू बी 1 वी हैव 30 ऑरेंजेस, 60 एप्पल्स एंड 70 bananas. So in total 160 fruits in all. So this is the correct answer. Moving to next question. तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन था रेशियो प्रोपोर्शन का. और जो फर्स्ट क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से वो भी काफी इजी था. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ओके, बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, in a group of 150 students, there are 50 students who like tea, 48 like juice, and 62 like coffee. And if each of the students in the group likes among tea, coffee, and juice, then the maximum number of students that like more than one drink is. Okay, so in total we have 150 students. इसका टोटल करें यदि इंडिविजुअल का तो टी लाइक करने वाले इज 52, those who like juice is 48 and कॉफी वाले इज 62. सो ये जो टोटल करने पे आ रहा है वी आर गेटिंग इट टू बी 162. वेयर इज जो टोटल स्टूडेंट थे वो 150 थे. नाउ सी, बहुत सिंपल अप्रोच डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. देयर इज नो नीड टू यूज एनी फॉर्मूला, देयर इज नो नीड ना. नाउ लेट अस अज्यूम देयर आर 150 स्टूडेंट A1, A2, A3, A4 and so on till A147, A148, A149 and
A 150. So there are 150 students, right? Now there is a condition. Each student in the group likes one among tea, coffee and juice. तो कोई ना कोई तो पसंद है ही है. So जो total likings जो है अपने पास, जो total number of likes है, that is 160. उसमें से हर किसी को एक एक लाइक देना तो जरूरी है. इट इज मैंडेटरी एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. तो एक काम करते हैं, इन 162 लाइक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक लाइक में देता हूं A1 को, एक A2 को, एक A3 को, एक A4 को एंड सो ऑन. इस तरह से सारे वंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो हमने कितने वंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए आउट ऑफ 162? 150 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ वी आर रिमेनिंग विद 12. अब एक काम करते हैं, हो सकता है A1 को टी के साथ जूस और कॉफी भी पसंद हो, तो इसको 1-1 दोनों पसंद करवा देते हैं. जूस और कॉफी भी पसंद करवा देते हैं. सिमिलरली A2 को भी दो पसंद करवा देते हैं, A3 को भी, A4 को भी, A5 को भी और A6 को. तो आपने देखेंगे ये जो एक्स्ट्रा 12 लाइक्स बचे थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उनका? 6. बट हमें इस नंबर को मैक्सिमाइज करना था. जिनको दो या दो से ज्यादा पसंद हो ड्रिंक्स, उसको मैक्सिमाइज करना था. यहां पर जब हमने हर एक इंडिविजुअल को तीन तीन ड्रिंक्स दे दी हैं तो हम उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाए. इंस्टेड यदि हम ऐसा करते कि हर एक जो 12 लाइक्स बचे हैं वो एक एक लाइक 12 इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते, तो ये जो 12 स्टूडेंट्स होते, ये जो 12 स्टूडेंट होते, ये किस कैटेगरी में आ जाते? जिनको सबको दो ड्रिंक्स पसंद है. तो क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना था द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मोर देन वन, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 ड्रिंक्स का ऑप्शन, हमें क्या करना चाहिए था? 2 ड्रिंक्स देनी चाहिए थी, जितने भी स्टूडेंट को दे सकते हैं. और क्योंकि हमारे पास 12 ड्रिंक्स ही एक्स्ट्रा बची थी, एक एक ड्रिंक हम सबको पहले ही अलॉट कर चुके हैं, तो हम कितने स्टूडेंट्स को ये अलॉट कर सकते हैं? फर्दर 12 स्टूडेंट्स को. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 12. सो ये अप्रोच आई होप आपको क्लियर होगी. देयर इज नो नीड टू यूज एनी फॉर्मूला. ये बहुत सिंपल तरह के क्वेश्चन है, इनको सिंपली करना चाहिए, सिंपली समझना चाहिए. नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Okay, based on percentage, again a basic one. The price of chocolate is increased first by X% and then it is decreased by X%. And the new price is now found to be 96.76% of the original price. We need to find the value of X. Now let us assume the initial price was ₹100 only. First, it was increased by X%. That means 1 plus X by 100. This must be the new price of the chocolate. And then this new price is decreased by X%. तो हमने क्या किया होगा? 1 minus X by 100 किया होगा. आई होप आप लोग को ये क्या हो रहा है ये क्लियर होगा. जिनको नहीं क्लियर है उनको मैं समझा देता हूं. लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ X इज 10. तो व्हाट वी आर डूइंग इन इज, जो भी प्राइस था बेटा उसको 10% से बढ़ा रहे हैं. तो बेसिकली 1 प्लस 10% उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं. तो 1 प्लस 10 by 100 का ये लॉजिक होता है. और सपोज किसी प्राइस को हमको 10% से कम करना है, तो 1 माइनस 10%, 10% उसकी प्राइस कम कर दी. तो हमने बस यही लॉजिक यूज किया है कि वी हैव अज्यूम्ड द प्राइस टू बी हाउ मच? 100. इनिशियली इट वाज इंक्रीज्ड बाय X%, तो हमने 1 प्लस X by 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया. ये नई प्राइस थी चॉकलेट की. अब इस प्राइस को डिक्रीज किया गया है X% से, तो अगेन मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस X by 100. And the new price is basically 96.76% of the original price. आप यहाँ पे 100 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे X भी ले सकते हैं. X तो मैंने यहाँ यूज किया, आप यहाँ पे Y भी ले सकते हैं. एनीथिंग ना, हमने 100 यूज किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उससे. तो सिंपली दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट. नाउ दिस वेरी बेसिक इक्वेशन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X. यूजिंग द फॉर्मूला A plus B into A minus B is A square minus B square. और यहाँ पर वी हैव 96.76 by 100. यदि हम इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम 10,000 माइनस X स्क्वायर अपॉन 10,000. और यहां पर भी यदि हम इसका पॉइंट हटा देते हैं, डेसिमल रिमूव कर देते हैं, तो 9676 अपॉन दो एडिशनल जीरो आ जाएंगे 10,000. अच्छा है, ये कैंसिल हो रहा है. सॉल्विंग दिस विल गेट X स्क्वायर एज 324. सो X विल कम आउट टू बी प्लस माइनस 18, बट ऑब्वियसली प्लस 18 हमारा आंसर हो जाएगा. रेट कैन नॉट बी नेगेटिव ना. ठीक है. सो सिंपल क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन परसेंटेज. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं थी, डूएबल था. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, based on simple interest, a person borrows 4,000 rupees from person B for a duration of 4 years. Okay.
वही जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कि इस 4000 का कुछ पोर्शन उसने 3% इंटरेस्ट पे दिया और कुछ पोर्शन उन्होंने 4% इंटरेस्ट पे दिया। आपसे रेशियो पूछा जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट जो मिला वो 520 रुपीज मिला है, 520 रुपीज इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न, तो 3% पे कितना दिया होगा वो पूछा गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगेन, राइट। इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका सिखाते हैं आपको। सी, यदि ये 4000 रुपीज मैंने आपको 3% पे दिए होते तो पर ईयर आपका इंटरेस्ट आता 120 रुपीज, विच इज 3% ऑफ 4000, और ये 4 ईयर्स के लिए है। तो यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 480 रुपीज का इंटरेस्ट बनता, यदि मैंने सारा का सारा पैसा आपको 3% पे दिया होता। यदि मैंने सारा पैसा 4% पे दिया होता तो 4% ऑफ 4000 इज 160 रुपीज, और इसको इंटू 4 कर देते हैं क्योंकि ये 4 ईयर्स के लिए है, तो जो हमारा इंटरेस्ट आता वो 640 रुपीज आता। बट हमारा इंटरेस्ट आया कितना है, 520। आपको क्या करना है, यूजिंग द मेथड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन, व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली फाइंड द डिफरेंस। कितना डिफरेंस है बच्चों, 640 माइनस 520 इज 120, और यहां पर कितना डिफरेंस है, 520 माइनस 480, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किया जाता है, तो दैट इज हाउ मच, 40 ओनली। So this is the ratio, which further is equal to 3:1। तो हमने जो 3000 और 4000 में इन्वेस्ट, 3% और 4% में इन्वेस्ट किया है, वो 3:1 में किया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था 3% पे कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो दैट इज 3/4 ऑफ 4000, तो दैट इज इक्वल टू 3000 रुपीज इज द आंसर। बहुत इजी मेथड है, बहुत जल्दी हो जाएगा। नो नीड टू फॉर्म एनी इक्वेशन, नो नीड टू अज्यूम समथिंग टू बी एक्स, कुछ भी करने की नीड नहीं है, यू कैन सॉल्व इट डायरेक्ट। फाइन, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गुड वन। ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, जो लॉग की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा आपके लॉजिक पे भी बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सी, 4 raised by log base 2 x minus 4x plus 9 raised by log base 3y minus 16y plus 68, तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नॉर्मल एक्स और वाई में इक्वेशन है, बट वहीं पर वो लॉग में पावर्स में भी जा रही है, तो बहुत से बच्चे एक बार देखते ही इसको स्किप कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि चलिए अज्यूम, लेट अस अज्यूम कि हमको नहीं आ रहा है इक्वेशन एग्जाम में, बट हमारे पास टाइम है, हमको करना है, तो कैसे कर सकते हैं, लेट अस गिव इट अ ट्राई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको एक प्रॉपर्टी आती है लॉग की, दैट n सॉरी raised by log a m is equivalent to m raised by log a n। यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे यूज हो सकती है, यू इन दिस पर्टिकुलर, तो 4 raised by log 2x कैन बी रिटर्न एज x raised by log 2, ये सब सेम रहेगा, बस ये x और 4 इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां पर क्या हुआ था, ये m और n इंटरचेंज हो रहे थे। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि दिस कैन बी रिटर्न एज log 2 raised by 2, दिस विल सिंपली बिकम x स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है ये सिंपली आपका x स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, सेम प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। 9 log 3y is equivalent to y log 3 9। Now again this 9 can be written as square of 3, so this again will become y square। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई जिससे हमको इस टर्म की वैल्यू मिल गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस टर्म की वैल्यू मिल गई है हमको वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 68 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक भी बन रही है और दो अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है आप लोग के सामने, जस्ट फोकस ऑन दिस। यदि ये हम इसको किसी का होल स्क्वायर बनाते हैं तो ये स्क्वायर वाली टर्म होती है, ये 2ab वाली टर्म। जब अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और साथ में 2ab आता है, तो ये वाली जो टर्म होती है लीनियर वाली, ये हमेशा 2ab वाली टर्म होती है। इसी तरह इसमें से भी अपन देखेंगे कि दिस टर्म ये 2ab वाली टर्म होगी। तो यदि मैं इसको ऐसा देखूं तो मैं इसको किसका स्क्वायर बना सकता हूं, इट कैन बी रिटर्न एज x माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4x। तो हमें x स्क्वायर पहले से मिल रहा है, माइनस 4x पहले से मिल रहा है, एक प्लस 4 हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इसमें से माइनस 4 कर देते हैं, इक्वल हो जाएंगी दोनों चीजें, राइट। सिमिलरली दिस कैन बी रिटर्न एज y माइनस 8 होल स्क्वायर,
y माइनस 8 होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखिए ये 2ab वाली टर्म होगी तो यहाँ पर 16 आ रहा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, दैट वुड बी 8 ओनली, राइट। अब इसको ओपन करते हैं तो विल गेट y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y। यहाँ पर ये 64 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे ये तो 64 था ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 64 कर देते हैं एंड वी हैव प्लस 68 फ्रॉम हियर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो देखिए -4 एंड -64 इज 68 ओनली, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बताएं, क्या कभी कोई भी स्क्वायर, दो स्क्वायर्स को ऐड करने पे 0 आ सकता है? नेवर। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, व्हेन बोथ द नंबर आर इंडिविजुअली इक्वल टू 0। ये भी 0 हो और ये भी 0 हो तभी ये पॉसिबल है। दैट मीन्स ये 0 कब हो सकता है? एट x इक्वल टू 2। ये 0 कब हो सकता है? जब y की वैल्यू 8 हो। तो यहां से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स इज बेसिकली 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये प्रॉपर्टी आना बहुत ज्यादा जरूरी था। सपोज आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती है तो भी उस केस में क्या कर सकते थे आप लोग, मैं यहाँ शो करता हूँ। देखिए जब कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपकी जगह होता बच्चों तो मैं इसको कुछ अज्यूम कर लेता, मैं इसको ए अज्यूम कर लेता, राइट। तो यहां से मुझे पता चलता कि x इज a रेज टू पावर 2, सॉरी x इज 2 रेज टू पावर a, ये मुझे मिल जाता है यहां से। इसी तरह मैं log 3y को b अज्यूम कर लेता। यदि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कैसे करना चाहिए था। तो उस केस में y अपना कितना आ जाता बच्चों? y आ जाता अपना 3 रेज टू पावर b, ठीक है। तो अब ये हमारी इक्वेशन हो जाती, दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर और log 2x को हमने क्या माना था? a, तो ये पावर 2a हो, माइनस 4x को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर और log 3y को हमने क्या माना था? 3 की पावर b, माइनस 16y प्लस 68 इक्वल टू 0। ये हो गया। ये थोड़ा हो सकता है आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट हमको सीखना है कि हम कैसे कर सकते थे ना। देखो x तो 2 की पावर a है, तो यहाँ पे था 2 की पावर 2a माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 2 की पावर a सब्सटीट्यूट कर देते, प्लस दिस इज व्हाट 3, यहाँ पे ये पावर आ रही है अपनी, माइनस 16 y क्या है? 3 की पावर b है, तो यहाँ पर वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, प्लस 68 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यदि यहाँ पे मैं 2 की पावर a को कुछ m और 3 की पावर b को कुछ n अज्यूम कर लूं, तो ये वही इक्वेशन आ जाएगी जो यहाँ पे थी। इट विल बी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 68 इक्वल टू 0। तो ये सेम इक्वेशन आ गई, आगे का मेथड पूरा सेम रहने वाला है। ये सॉल्यूशन तब आप यूज कर सकते थे जब आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती। इन केस आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो भी आप इसको सॉल्व करके आ सकते। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ पेयर्स एक्स वाई integral pairs basically satisfying the inequality mod of x minus 5 plus mod of y minus 5 less than equal to 6। इसका एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल ये। तो देखिए यहां पर दोनों चीजें इज नॉन नेगेटिव, क्योंकि मॉड है तो ये दोनों वैल्यूज नॉन नेगेटिव होने वाली हैं, ये हम समझ ही चुके हैं। तो लेट अस डू वन थिंग, हम यहां पर x माइनस 5 को a ले लेते हैं विच इज पॉजिटिव, विच इज नॉन नेगेटिव, बेसिकली इट कैन बी 0 बट इट इज नॉन नेगेटिव। y माइनस 5 को b ले लेते हैं एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। वी ओनली नीड टू कीप इन माइंड कि a और b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रखनी है हमें, कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, बिकॉज ये मॉड में, राइट। ओके ठीक है। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? तो बच्चों बहुत ही तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए। नाउ लेट अस अज्यूम a टू बी 0। यदि a 0 है तो b कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम, मैं आपको केसेस लिख के समझाता हूं थोड़ा अच्छे से समझ में आए। 1 2, इनफैक्ट वाई नॉट 0, b 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब यहीं पर समझते हैं, a 0 हो रहा है मतलब x माइनस 5 0 हो रहा है, कितनी वैल्यूज पे पॉसिबल है? ओनली वन वैल्यू, दैट इज x इक्वल टू 5। तो जब भी ये 0 हो रहे हैं
वो केवल a की वैल्यू पे पॉसिबिलिटी आ रही है। बट नाउ सपोज a2 हो रहा है, सपोज a2 हो रहा है, a2 कब कब हो सकता है बच्चों? x माइनस 5 का मॉड 2 कब कब हो सकता है? x इक्वल टू 7 पे भी हो सकता है, तो x इक्वल टू 3 पर भी हो सकता है। 7 पे ये मॉड ऑफ 2 हो जाएगा, 3 पर ये मॉड ऑफ माइनस 2 हो जाएगा, विच अगेन इज 2 ओनली। तो अपार्ट फ्रॉम जीरो जो भी वैल्यू आ रही है उसकी दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी, पर जीरो आने की केवल एक पॉसिबिलिटी रहेगी। ये वाला टर्म जीरो होगा x इक्वल टू 5 पर, ये वाला टर्म जीरो होगा y इक्वल टू 5। फाइन। अब हम देखते हैं कि ये कितने केसेस पॉसिबल है। तो जब मैंने लिखा कि a इज जीरो एंड b कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम 1 टू 6, 0 टू 6 इनफैक्ट, तो हाउ मेनी केसेस आर देयर नोट करते हैं। दोनों जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, x हैज टू बी 5 एंड y हैज टू बी 5। a जीरो हो जाए, ओनली वन पॉसिबिलिटी, बट b 1 हो जाए, y माइनस 5 1 हो जाए, इसका मॉड 1 हो जाए, तो y कैन बी 6 और y कैन बी 4। तो टू पॉसिबिलिटीज, दैट मेक्स इट 2। सिमिलरली 1 into 2 यहां पर भी चलता रहेगा, टू केसेस, टू केसेस, टू केसेस, टू केसेस एंड टू केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो चुके हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 इज 13। ये वो केस था जब हमने a को जीरो अज्यूम कर लिया था। अब वापस से a और b की पेयरिंग पे आता है। नाउ लेट अस अज्यूम a to be 1। नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b कैन बी, if we start from 0 itself, तो it can be 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ 6 नहीं हो सकता क्योंकि 1 plus 6 will be 7, उसे एक्सीड कर जाएगा। इसके कितनी पॉसिबिलिटीज है? लेट मी चेंज द इंक। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? a 1 हो रहा है, ये चीज 1 हो रही है, टू पॉसिबिलिटीज, और इसके जीरो होने की ओनली वन पॉसिबिलिटी। यहां पर a 1 हो रहा है और b भी 1 हो रहा है, तो दोनों के लिए टू टू पॉसिबिलिटीज आ देयर, तो दैट मेक्स इट 4। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोनों 1 हो रहे हैं। दोनों 1 कैसे हो सकते हैं बच्चों? मैं एक बार वापस समझाता हूं। x माइनस 5 भी 1 हो और y माइनस 5 भी 1 हो, कैसे कैसे हो सकता है? x के लिए वी हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, क्या क्या? 6 and 4। y के लिए अगेन वी हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, 6 and 4। सो हाउ मेनी टोटल वैल्यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज डू वी हैव? यहां से 6 4 ले सकते हैं, यहाँ से 6 6 ले सकते हैं, यहाँ से 4 4 ले सकते हैं, यहाँ से 4 6 ले सकते हैं। तो इन टोटल 4 केसेस वी है। और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो फॉर x वी हैव टू ऑप्शंस, फॉर y वी हैव टू ऑप्शंस, तो इन टोटल 4। ये अप्रोच हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आप इसी के थ्रू समझिएगा। तो यहां पर कितने ऑप्शंस आ गए? 4। सिमिलरली आगे की यदि हम बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस केस में 4, अगेन 4 ऑप्शंस, अगेन 4 ऑप्शंस, अगेन 4 ऑप्शन, और यहां पर वी हैव 2 ऑप्शंस। क्यों? जो x है वो 1 2 केसेस में हो सकता है। तो इन टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? 1 2 3 4 5 एंड 2 22। Now again, next, when we are assuming a to be 2, हमने a को 0 से स्टार्ट किया, a को 1 लिया, a को 2 ले रहे, तो b can assume any value from 0 1 2 3 4। 5 नहीं हो सकता। अगेन हाउ मेनी केसेस? मैं अगेन दूसरी यूज करता हूं, एक बार मैं पूरे केसेस लिख देता हूं, फिर आपको समझाते हैं कैसे कैसे आएंगे। व्हेन a is 3, we can have value from 0 1 2 3। व्हेन a is 4, we can have values from 0 1 2। व्हेन a is 5, b can have values from 0 and 1 only। and when a is 6, b के पास केवल a की पॉसिबिलिटी बचती है 0 होने का। नाउ वी सिंपली नीड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, तो यहां पर कितने केसेस आएंगे? 2, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 कैसे आ रहा है, देन 4 4 4 4, कितना हो गया? इस 18। यहां पर कितने आ रहे हैं? 2, क्योंकि 0 के लिए भी है 1 ऑप्शन ओनली, पर 3 के लिए भी हैव 2 ऑप्शन, है ना? मैं बार बार समझा रहा हूं क्योंकि समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 4 4 4, तो इन टोटल 14। 2 4 4, इन टोटल 10। 2 and 4 total 6, only 2 cases, that is 2। तो यदि हम इनका टोटल करें तो how many total cases we have? This is 35 plus 18 will make it 53, plus 14 will make it 67, plus 10 will make it 77, plus 6 will make it 83, and plus 2 will make it 85। So in total 85 cases are there। So this is very good question। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट अच्छे लॉजिक पे बेस्ड था, समझना था कि केसेस किस तरह से चेक करने। डिसेंट वन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। तो देखिए क्या है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेज्ड टू पावर अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 1।
अभी कब पॉसिबल है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, वन आ जाए? या इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या हमें लॉग ले लेना चाहिए? इसको एक बहुत सिंपल लॉजिक से हम सॉल्व करते हैं, इसको केसेस में डिवाइड करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन एनी नंबर इज रेज्ड टू पावर जीरो, तो आंसर वन आता है, पहला केस। केस सेकंड, व्हेन वन इज रेज्ड टू पावर एनी नंबर, जब वन को हम किसी भी नंबर से रेज कर देते हैं तो भी वन ही आने वाला है। और ये दो केसेस होते हैं जो जनरली बच्चे करते हैं, पर वो एक केस भूल जाते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, थर्ड केस, माइनस वन रेज टू पावर एनी इवन नंबर। इवन क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली माइनस वन का यदि ऑड पावर हो जाएगी तो दैट विल बी ऑड, यहां पर हमको वन चाहिए, पॉजिटिव वन चाहिए। So we have three cases. Now let us check each of the case one by one. So any number raised to power 0, that means this power is 0. X square minus 5x plus 6 is equal to 0. So x minus 2, x minus 3 is equal to 0. And we have got two factors from here, 2 and 3. Now case second. अच्छा, यहाँ 2 and 3 पे नीचे कुछ भी वैल्यू आ रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीचे कुछ भी नंबर आ रहा हो, पावर ही जीरो हो रही है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर वन ही आने वाला। सेकंड केस, वन रेज टू पावर एनी नंबर, दैट मीन्स कि यदि ये वैल्यू वन हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 यदि वन हो जाए, और एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, और फर्दर इसे सॉल्व करें तो इट विल बी x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9। तो यहां से हमको x की दो वैल्यू मिल रही है, 6 एंड 9। अगेन नो नीड टू चेक फॉर पावर, क्योंकि ये जब वन है, बेस ही वन है, तो पावर कुछ भी आ रहा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अभी तक हमें चार वैल्यूज मिल चुकी हैं x की, 2 3 6 9। लास्ट केस, जब नीचे वाली वैल्यू माइनस वन हो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इज इक्वल टू माइनस वन। Further becomes x square minus 15x plus 56 is equal to 0. On further solving, we'll get x minus 7, x minus 8 equal to 0, or the values of x to be 7 and 8. पर क्या ये दोनों वैल्यूज ले लेनी चाहिए? We just need to check क्या कि जो पावर है वो इवन होना चाहिए। अभी यहाँ आंसर आते ही हमारा आंसर ओवरऑल नहीं आ गया है। वी नीड टू चेक फर्दर कि जो पावर है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वो इवन होना जरूरी है फॉर x इक्वल टू 7 and 8। Substituting value of x is 7, so this will be 49 minus 35 plus 6, which is even, तो 7 चलेगा, हमको even ही करना था। Assuming x to be 8, we'll have 64 minus 40 plus 6, which again is even, तो ये भी चलेगा। तो बेसिकली दो आंसर्स यहां से मिल गए, दो यहां से और दो यहां से, so in total we have 6 solutions. फाइन। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो थर्ड केस है वो जनरली स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, based on functions. So f and g be two functions defined by fx. Fx is given as mod of x plus mod of x, and gx is defined as 1 by x, and obviously x is not equal to 0. Fine. Now given a fa plus g of fa is equal to 13 by 6 for some real a, and we need to find the maximum value of function of f g a, इसकी मैक्सिमम वैल्यू में निकाल ली थी। फाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन एफ ए। नाउ एफ ए क्या होगा इसमें? ए प्लस मॉड ऑफ ए, एक्स की जगह हम ए रिप्लेस कर देंगे। जी ऑफ एफ ए, जी ऑफ एफ ए का मतलब होता है कि जी एक्स में हमको जहां जहां एक्स था वहां पर हमें फंक्शन एफ यूज करना था, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स। क्या था? मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स था, और क्योंकि यहाँ पे ए में यूज करना है तो दिस विल बिकम 1 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू 13 by 6। ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो इसको इजी करते हैं थोड़ा। सो लेट अस अज्यूम मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ए होल मॉड टू बी, लेट्स अज्यूम इट टू बी, लेट्स से x, सो दिस विल बिकम x, और इसको y ले लेते हैं, x क्योंकि हमने पहले भी यूज किया है, तो दिस विल बिकम y प्लस 1 अपॉन y is equal to 13 by 6. Further, y square plus y upon y is equal to 13 by 6. On further solving, you will have 6y square. This is one only, sorry. 6y square
minus 13y plus how much 6 is equal to 0. इसको सॉल्व करते हैं. So we need to have the value of 36 from 13. So the factors should be 6y square minus 9y minus 4y plus 6 is equal to 0. 3y, इसको split करते हैं. 3y, 2y minus 3 minus 2 and 2y minus 3. Perfect. तो y either comes out to be 2 by 3 और 3 by 2. ये दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास. बट y क्या था? यहाँ पे मैं दूसरे एक से सॉल्व करता हूँ, आप देख पाए अच्छे से. तो y था a plus mod of a is equal to either 2 by 3 और 3 by 2. अब आप देखेंगे a कैन नॉट बी नेगेटिव ओवर हियर. यहाँ पर a नेगेटिव नहीं हो सकता है. रीजन बीइंग a नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा? माइनस a प्लस ये प्लस a हो जाएगा. तो वो तो जीरो आंसर दे देगा, जबकि यहाँ पे वी आर गेटिंग नॉन जीरो आंसर्स, राइट? तो a इज नॉट नेगेटिव. तो कैन वी सिंपली ओपन दिस ब्रैकेट एज 2a which is equal to 2 by 3 और यहीं पर 2a is equal to either 3 by 2. a comes out to be 1 by 3 or a comes out to be 3 by 4. So we have got two values of a. ठीक है, अब a की दो वैल्यूज है हमारे पास, 1 by 3 या 3 by 4. बट हमें पूछा गया था मैक्सिमम ऑफ f और ga. f of ga क्या होगा? सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं. f of ga, तो बेसिकली जहां पर फंक्शन f में x था वहां gx डालना है. तो बेसिकली x को 1 by x से रिप्लेस करना है. तो इट विल बी mod of 1 by a plus 1 upon mod a. ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है. अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है. सिंपली सब्स्टिट्यूट वैल्यू एंड फाइंड द आंसर. तो जब हम 1 by 3 डालते हैं एक a की जगह, विल गेट 1 upon 1 by 3 is 3 plus 3 6. और जब हम 3 by 4 डालते हैं तो विल गेट 4 by 3 plus 4 by 3 is 8 by 3 which is 2.66 something. तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पूछा गया था, दैट इज वैल्यू इज 6 एंड दैट इज एट a equal to 1 by 3. a equal to 1 by 3 पे आपको मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है वो 6. तो अच्छा क्वेश्चन था, फंक्शंस का अच्छे तरह से यूज करवाया गया, यहाँ पे मॉड का यूज करवाया गया. तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो लेट ABC be a triangle right angled at, just give me a second, right angled at B. ठीक है, इसको B मान लेते हैं, right angled है, फाइन. AB और BC दोनों 18 है. ठीक है, ये ड्रॉन टू स्केल नहीं है, आप लोग को पूरा प्रॉपर 18 नहीं दिख रहा होगा, बट एनीवेज साइड छोटी बड़ी है, बट नो इश्यूज, आप समझते हैं इसको. द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्रायंगल एंड हैज B as one of the vertices. तो मैंने डायग्राम में पहले ही बना रखा है कि हमको इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है. वी नीड टू मैक्सिमाइज, राइट? नाउ लेट अस अज्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लेबल कर लेते हैं MN. इसको एक बार के लिए x अज्यूम करते हैं, और क्योंकि रेक्टेंगल है, ये x है, तो ये साइड भी x होगी. एंड इफ दिस इज y, तो दिस अगेन इज y ओनली. एंड दिस पूरा वाज 18. तो ये रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी 18 minus y and this remaining part must be 18 minus x, right? अब आप देखेंगे बच्चों, ट्राइंगल AMN is similar to ट्राइंगल ABC. बहुत इजी तरीके से आप इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. क्या है? एंगल सेम है, दोनों 90-90 है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये और ये एंगल अपन दोनों के आप सेम प्रूव कर सकते हैं पैरेलल लाइन से, बिकॉज MN and BC. एंगल A कॉमन है, तो बेसिकली वी कैन इजीली प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर. तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो रेशियो में आती है, राइट? तो आई कैन इजीली राइट AM, ये वाली साइड छोटी ट्रायंगल की, अपॉन AB इज इक्वल टू MN, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, अपॉन BC इज इक्वल टू AN, अगेन छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, अपॉन AC. ये हम लिख सकते हैं डेफिनेटली रेशियो में. Now what is AM? It is 18 minus x. What is AB? It is 18. What is MN? It's y. What is BC? BC is again 18. इसको नीड नहीं है, इतना सफिशिएंट है हम लोग के लिए. 18 से 18 gets cancelled out, so we get x plus y as 18. ये हमें मिल चुका है. फाइन. हमें क्या मैक्सिमाइज करना था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज x into y. नाउ सी, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर्स की. जब भी आपको किसी दो नंबर्स का सम दे रखा हो और उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट यू नीड टू फाइंड आउट, तो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली डिवाइड द नंबर इन टू इक्वल पार्ट्स.
यहाँ पर आप x को भी 9 और y को भी 9 दे दीजिए, दोनों को इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो जो एरिया आएगा मैक्सिमम 9 इंटू 9 दैट इज 81। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर्स की। अगेन इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, पर वो इधर मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको अभी। दूसरा वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें पूरा समझाया है कि किस तरह से नंबर्स को डिवाइड किया जाए। नाउ सपोज यहाँ पर ये होता बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट्स से 18 की जगह 19 होता, जो कि इक्वली डिवाइड नहीं हो पा रहा है इंटीजर्स में, तो मैं एक को 10 और एक को 9 ले लेता। तो जो गैप है दोनों में वो कम से कम रखना जरूरी है। यदि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आपको गैप कम से कम रखना चाहिए, तो उस केस में ये आंसर होता अपना। बट एनीवेज यहाँ पर क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे थे तो दोनों को मैंने 9 9 माना, आंसर इज 81। आप चाहें तो इसमें डिफरेंशिएशन यूज करके, डबल डिफरेंशिएट करके, मैक्सिमम मिनिमा यूज करके निकाल सकते हैं, पर उसकी कोई नीड नहीं है। सिंपली इस तरह से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, based on properties of triangle, so the number of triangles with integral side and perimeter as 15, we need to have the perimeter to be 15 ना। अब देखो, now I am assuming there is one triangle with sides a b and c, so let's this side be a, this be b and this be c ना। तो let us assume now triangle का हमको जो perimeter है वो 15 रखना है। फाइन, अब यहां पर एक बात करते हैं कि किस तरह से हम एबीसी को 15 में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटीग्रल साइड से, ये हमें पता है। फाइन, देखो दो प्रॉपर्टीज होती है ट्राइंगल की जिसको हमको ध्यान में रखना है कि द सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। ये दो प्रॉपर्टीज होती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नाउ सपोज यदि मैं यहाँ पर ए को 1 मान लेता हूं, तो बी और सी को मेरे को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे दोनों प्रॉपर्टीज वैलिड रहे। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इज टू गिव देम वैल्यू एज 7 7। ठीक है, अब आप कोई से भी दो साइड ले लीजिए। यदि मैं ये दो साइड लेता हूँ ये 7 से ज्यादा है, ये दो साइड लेता हूँ ये 1 से ज्यादा है, ये दो साइड लेता हूँ ये 7 से ज्यादा है। आप डिफरेंस की भी बात करें तो इन दोनों को साइड का डिफरेंस इससे कम है, इन दोनों साइड का डिफरेंस इससे कम है। मतलब हमारी जो दोनों प्रॉपर्टीज है ये गलत नहीं। यदि मैं ए को 2 अज्यूम कर लेता हूं, अब मुझे बाकी दोनों का सम कितना चाहिए 13, क्योंकि आउट ऑफ 15 2 तो ए जा चुका है। तो 13 हम किस तरह से कर सकते हैं बच्चों, यदि मैं यहां पर एक साइड को 6 और एक को 7 लू तो चलेगा। अगेन अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और दोनों साइड्स को यदि मैं यहाँ पे 6 7 लिया और यदि मैंने यहाँ पे 5 8 लिया, तो एक बार चेक करते हैं कि 5 8 लेने में क्या होता है। अभी भी आप देखेंगे इनका सम 15 आ रहा है, बट द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज नॉट लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 2, तो हम ये नहीं ले सकते हैं। ये चलेगा, ये चलेगा। नाउ लेट अस अज्यूम a टू बी 3। अब हमें बाकी दोनों का जो सम है वो मिलाकर चाहिए कितना, हमें चाहिए वो 12। तो 12 किस तरह से आ सकता है, इट कैन बी द 6 6 और कैन इट बी 5 7, ले सकते हैं क्या, एक बार बताएं। देखते हैं एक बार करके, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, चल रहा है चल रहा है। डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन द थर्ड साइड, चल रहा है। डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन द थर्ड, चल रहा है। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज you just need to be focused on the values। values जो है बच्चों, just give me a second, values जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपका ये जो दो प्रॉपर्टीज है गलत ना हो। इन टोटल अभी तक हमारे पास 4 केसेस हो चुके हैं। नाउ लेट अस अज्यूम a टू बी 4। अब बाकी दोनों का साइड का सम हमको चाहिए 11। तो क्या हम इसको 5 6 ले सकते हैं, क्या हम इनको 4 7 भी ले सकते हैं। आप देखेंगे ये दोनों केस वैलिड आ ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं मिलेगा। और लास्ट यदि हम इसको 5 तक ले जाते हैं तो बाकी दोनों साइड का सम हमको चाहिए अब 10 5 5। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो केस आ गया। ये वाला आपका आइसोसेलेस के केसेस आ गए, ये भी आइसोसेलेस है, ये स्केलिन ट्राइंगल के केसेस आ गए। तो बेसिकली हमने सारे केसेस कवर कर लिए हैं, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इन टोटल वी हैव 7 केसेस, 1 2 3 4 5 6 and 7। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, matrix. So a matrix is given such that the sum of all the three elements along any row or any column or any diagonal are equal to each other. We need to find the determinant value of this. Okay, fine. So basically any row, this row इसका सम, इन सबका सम सेम है, ये कॉलम का भी सम सेम है, इनफैक्ट डायगोनल्स का भी सम सेम है, तो सब कुछ सेम गिवन है। तो एक काम करते हैं,
यदि हमको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ, x1 y1 z1 x2 y2 8 7 y3 and 3. Now see, let us focus on this. This is 3. Just a second. इसका सम कितना आ रहा है बच्चों? This is z1 plus 11. यहां से ये सम कितना आ रहा है? y3 plus 10. यहां से इनका सम कितना आ रहा है? y1 plus y2 plus y3. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो आ रही हैं ये सारी इक्वल है हमारी, सारी इक्वल है। यहां से हम कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जिससे हम इजीली सबसे पहले कुछ आंसर पे आ पाए। तो हम उस पे फोकस करते हैं कि किस तरह से इसको यूज करें, कुछ डेफिनेट आंसर पर हम आ पाए, वैल्यूज निकाल। यहाँ पर हम एक बार डायगोनल्स की भी वैल्यू लिखते हैं। तो इट दिस डायगोनल इज z1 प्लस y2 प्लस 7। तो z1 प्लस y2 प्लस 7। यहाँ वाली जो डायगोनल है दिस इज x1 प्लस y2 प्लस 3। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज लिख ली। नाउ ये सारी वैल्यूज इक्वल है, राइट? तो इफ वी कंपेयर दीज टू वैल्यूज, सो वी हैव z1 प्लस 11 इज इक्वल टू z1 प्लस y2 प्लस 7। z1 कैंसिल होता है, y2 की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई है 4, y2 की वैल्यू 4 मिल चुकी है। तो यहां पर यदि हम इसको यूज करें, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, चलिए। y3 प्लस 10 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज 4 एंड y3, y3 से y3 कैंसिल हुआ, तो यहां से y1 की वैल्यू मिल गई है हमें कितनी, 6। तो इन वैल्यूज को एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल पा रहा है अपन को। एक बार मैं इसको भी ढंग से लिखता हूं, और y1 की जगह आई नीड टू सब्स्टिट्यूट 6 एंड y2 इज 4। देखिएगा आप, तो y1 इज 6, y2 इज 4। ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है और यहाँ पर 3 था। ठीक है, अब और किस तरह से हम बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो आप देखें। यहां से यदि हम दें तो x1 प्लस x2 प्लस 7, और यहां से हम देखें तो x1 प्लस 4 प्लस 3। तो x1 प्लस 7, ये डायगोनल हमने x1 प्लस 7 लिया। और यदि हम यहाँ इस रो वाइज देखें तो इट इज मस्ट बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 7। 7 कैंसिल आउट, x1 से x1 तो x2 तो 0 आ गया है। तो बढ़िया है, x2 की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। अब नाउ x2 इज 0, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। फर्दर और हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे, वो देखते हैं। अब तो हो चुका है ये, जब मेरे को 12 मिल चुका है, ये भी कॉलम है जिसकी वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब इस वाले रो की वैल्यू 12 होनी चाहिए थी। उसमें से एक 0 एक 7 है, तो x1 मस्ट बी 5 देन। यहाँ पे x1 की वैल्यू मिल गई है। अब केवल y3 और z1 बचा है, जो भी आसानी से कैलकुलेट हो रहे हैं। हर एक रो या कॉलम का सम 12 आ रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है, तो z1 मस्ट बी 1। z1 1 करते ही ये 12 हो जाएगा टोटल। और y3 यहाँ पर 10 हो रहा है, तो y3 मस्ट बी 2। यहाँ पर ये वैल्यू भी मिल गई है। तो बेसिकली हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, बहुत इजीली मिल गई है, बहुत दिक्कत वाली बात कहीं पे भी नहीं रही। अब हमें इसे डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 5 इंटू दिस यू मस्ट बी नोइंग कि किस तरह से किया जाता है, -16 एंड प्लस 7 इंटू 48 माइनस 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 44 इंटू 7 ना, which is equal to 308, and this is minus 4 into 5 minus 20. So this will be 288 is your answer. Again, easy question था, not that difficult one. So moving to next question. Okay, again बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा था देखने में, पर इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये देखने में लग रहा है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर मीडियन एज इन 8 कंपनीज लोकेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट। Now, what is median? First of all, we need to understand this कि median क्या होता है। तो suppose we have 5 numbers, 1, 5, 8, 9, 7. So इसका median क्या हो जाएगा? Mid value. But we need to keep in mind that these values must be in some order. It can be either ascending order or descending one. But ये order में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब जो मिड वैल्यू आता है वो मीडियन होता है, राइट? तो आई होप ये आपको मीडियन क्या होता है ये तो आपको क्लियर होगा। ए में टोटल, कंपनी ए में द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 32 एंड उनकी मीडियन एज इज 24।
ठीक है, इसी तरह बी के 28 एम्प्लॉयज हैं, मीडियन एज 30 है, एंड सो ऑन, सारा दे रखा है आप लोग को. Now it is known that the age of all the employees are integral values only. Fine. It is known that the age of every employee in A is strictly less than that of B, which further is less than that of C, and so on. तो basically ये जो values है, A का कोई भी employee हो, उसकी B के किसी भी employee से age छोटी ही होनी चाहिए. Same goes for B and C, C and D. ये इस तरह से है basically. ये कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना. फाइन, देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए, उस पर चलते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से. Okay, so the highest possible age of an employee of a company is, of company A की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये. ठीक है, कंपनी ए के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हाईएस्ट एज क्या हो सकती है. देखो अब कैसे बताएं. वी हैव 32 एम्प्लॉयज, मीडियन इज 24, मीडियन वैल्यू इज 24 एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 32. अब उनकी जो हाईएस्ट एज पूछी गई है वो क्या हो सकती है. चलिए इस पे फोकस करते हैं. क्या मैं ए के किसी भी इंप्लॉय की हाईएस्ट एज को 30 ले सकता हूं. अब देखिए बी का मीडियन 30 है, इसका मतलब बी के किसी ना किसी इंप्लॉय की तो एज 30 रही होगी, और बी का मीडियन 30 है, बी के किसी ना किसी इंप्लॉय की एज 30 है, तो मैं ए को 30 तो नहीं ले सकता, क्योंकि ए के जो भी एजेस है इंप्लॉयज की वो बी से तो कम होनी जरूरी है, ये कंडीशन थी. पर क्या मैं ए की मैक्सिमम एज को 29 ले सकता हूं. कैन आई अज्यूम इट टू बी 29. हो सकता है मैंने एक 29 ले लिया और बाकी मैंने सारे 24 के मान लिए हो, और एक कुछ भी ले लिया, मतलब लाइक अभी भी मेरा मीडियन तो जैसे वी हैव 34 एम्प्लॉयज ना, तो सारे 24 के हो और एक 29 का हो केवल, तो भी मिड वैल्यू तो 24 ही रहेगा ना, मीडियन तो 24 ही आने वाला है. तो क्या हम ए की मैक्सिमम वैल्यू को 29 ले सकते हैं. यस, इट कैन बी 29 ओनली. 29 ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वी हैव ए कंडीशन दैट बी का हर एम्प्लॉय ए के एम्प्लॉय से बड़ा है. तो 29 से बड़ा नंबर 30 हम नहीं दे सकते, क्योंकि बी का मीडियन ऑलरेडी इज गिवन टू अस एज 30. तो आई होप ये वाला क्लियर होगा आपको क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. वो क्या है, तो इसमें सॉल्व करने का ज्यादा नहीं था, बस समझने का था कि आंसर कैसे देना है. नेक्स्ट इज द मीडियन एज ऑफ एम्प्लॉय अक्रॉस द 8 कंपनीज. अब 8 कंपनीज के मीडियन कैसे निकालें. ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, पर इसको समझना पड़ेगा. 8 कंपनीज की यदि अपन मिला के टोटल एम्प्लॉयज की बात करें, तो एक बार अपन कैलकुलेट करते हैं टोटल कितना आ रहा है. तो दिस टोटल इज कमिंग आउट टू बी, अब इनका टोटल करते हैं अपन, तो 245 इज द टोटल. तो इसमें मिड नंबर क्या होगा. मिड नंबर निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज +1 एंड डिवाइड बाय 2. ये तरीका होता है मीडियन निकालने का. तो 123, तो 123 नंबर पे जो आ रहा होगा वो अपना मीडियन एज हो जाए. बट अगेन वी हैव अ कंफ्यूजन. 123 नंबर पे कौन आ रहा होगा, सबसे पहले वो देखते हैं, कौन सी कंपनी वाला आ रहा होगा वो देखते हैं. आगे चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट यही समझ लेते हैं. नाउ सपोज वी हैव 7 एम्प्लॉइज. ये तीनों एक कंपनी के हैं, ये दोनों एक कंपनी के, ये दोनों एक कंपनी के हैं. तो ओवरऑल मीडियन क्या है. ओवरऑल मीडियन आ रहा है हमारा डी. और कंपनी सेकंड का, ये कंपनी फर्स्ट है, कंपनी सेकंड है, कंपनी थर्ड है, कंपनी थर्ड सेकंड का मीडियन क्या आ रहा है, वो भी डी आ रहा है. तो इस केस में हम आंसर दे सकते हैं कि मीडियन वैल्यू क्या रही हो. राइट. अब सपोज करिए डेटा कुछ इस तरह से, ए बी सी एज का एक है, एक और सी एज का है, एक लेट से डी एज का है, एक ई एज का है, एक जी का है, एक कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, और एक एच है. अब इसमें मीडियन निकालने को बोला जाए तो मिड की दो वैल्यूज का लिया जाता है, पर वो कौन सी कंपनी में आएगा. यदि मैं मानूं कि ये फर्स्ट कंपनी से, ये दोनों सेकंड कंपनी से, ये दोनों थर्ड कंपनी से, ये दोनों फोर्थ कंपनी से, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा मेरे लिए निकालना कि वो कौन सी कंपनी को बिलोंग कर रहा होगा, उसकी एज क्या होगी. इसी में एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. सपोज यहाँ पे लेट से 7 की जगह 9 होते, जी के बाद आई भी होता, एच भी होता और आई भी होता, ये कंपनी 4 में होते. अब समझिएगा. अब मैं आपसे पूछता हूं कि ओवरऑल मीडियन निकाल लिए, क्या होगा. अब ओवरऑल मीडियन कैसे निकालेंगे अपन, उस पर देखते हैं. ओवरऑल मीडियन तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिड वैल्यू क्या आएगी अपनी, फिफ्थ वाली वैल्यू मिड वैल्यू आएगी. ठीक है. अब यहां पर दिक्कत क्या हो जाएगी बच्चों, यहां डेटा इस फॉर्म में दे रखा है तो मैं इजीली बता सकता हूं
पर जब मुझे ये बोला जाए कि इनकी एजेस नहीं पता मुझे, ये दोनों 12 के भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकता है एक 11 का हो, एक कितने का भी हो, यहाँ पर सी डी है, हो सकता है तीनों 10 के हो या फिर एक 11 का हो, क्या इस केस में मैं आंसर बता पाऊंगा कि मिड वैल्यू क्या आएगी मेरी? यहां पर मैं श्योरिटी से कभी आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो केवल हम एक ही केस में आंसर दे पाएंगे। समझाता हूं कैसे। यहां पर हमारा इस क्वेश्चन में जो मीडियन आ रहा है वो 123 आ रहा है, तो मिड वैल्यू इज 123। तो इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले कंपनी ए वाले अरेंज हुए 32 एम्प्लॉयज जा चुके हैं, ये सारे कंपनी ए के हैं। अगले 28 कंपनी बी के आएंगे, तो ये कितने हो चुके हैं टोटल अभी तक? 60, ये भी जा चुके हैं। अगले 43 कंपनी सी के आएंगे, ये टोटल कितने हो चुके हैं? 103, यहां तक 103 हो चुके हैं। अब वी हैव 39 कैंडिडेट्स। अब ये जो 39 कैंडिडेट्स है बच्चों, ये सारे 39 कैंडिडेट्स डी के हैं। पर हमें तो चाहिए था कितना वाला कैंडिडेट? 123 वाला। तो बेसिकली 20th नंबर का कैंडिडेट चाहिए था हमें, यहाँ पे 20th नंबर का कैंडिडेट। ये वाला जो वैल्यू आएगी ये हमारा ओवरऑल डेटा का मीडियन हो जाएगा। बट नाउ वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस वैल्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। बट आप यदि ढंग से देखें तो डी क्लास में वी हैव 39 वैल्यूज, तो डी क्लास की मीडियन वैल्यू क्या आएगी? डी क्लास में 39 है, मतलब 19 वैल्यूज यहां पर होंगी, 19 वैल्यूज यहां पर होगी, जो 20th वैल्यू होगी वही तो मीडियन होगी। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आ रही है ये डी क्लास की भी मीडियन है और ये हमारे ओवरऑल डेटा की भी मीडियन है। यदि बच्चों यहां पर मेरा 123 की जगह 124 आ रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता था, बिकॉज मेरे को इसके आगे वाली वैल्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मीडियन तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है इस 45, मीडियन तो गिवन है, तो मैं इसका आंसर दे सकता हूं कि हाँ ये वैल्यू तो 45 है। पर सपोज मुझसे एक आगे वाली वैल्यू पूछी गई होती तो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो वैल्यू क्या होगी, तो उसका मैं आंसर नहीं दे सकता था। तो अगेन इसका मैं आंसर क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि जो ओवरऑल डेटा का मीडियन है वो डी क्लास का भी मीडियन है। दैट इज द रीजन मैं आंसर दे पा रहा हूं। यदि वो डी क्लास का मीडियन ना होता तो मैं आंसर नहीं दे पा। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। इन कंपनी एफ द लोएस्ट सम ऑफ ऑल द एजेस। अब देखो लोएस्ट करना है, पर मिड वैल्यू हमको एफ की बात कर रहे हैं, लोएस्ट करना है। देयर 29 एम्प्लॉइज, यहाँ पे कुछ 14 एम्प्लॉइज होंगे, ये 15th नंबर वाला एम्प्लॉय होगा जो कि अपना मीडियन वैल्यू है, दिस इज 54, दिस इज 54, ये तो गिवन है। और यहाँ पे कुछ 14 एम्प्लॉइज और होंगे। अब सबको अपन को मिनिमाइज करना है, तो एक काम करते हैं ना, इनकी एजेस को मैं 55 56 कुछ भी मान सकता हूं, पर क्यों ना इन सबकी एज को 54 ही मान लिया जाए। 54 से कम तो नहीं कर सकते, 54 तो ले सकते हैं, इससे सम मिनिमम रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन सारी वैल्यूज को, इन 14 वैल्यूज को लेट अस अज्यूम इट टू बी 54, तो इन सबका सम कितना हो गया? 54 इंटू 14, इनका सम हो गया। एक 54 ये वाली एज हो गई। अब पहले वाली 14 वैल्यूज को क्या ले, तो एक काम करते हैं ना, इन 14 वैल्यूज को छोटे से छोटी वैल्यू अज्यूम करने की कोशिश करते हैं। छोटे से छोटी क्या हो सकती है? क्या मैं इसको 10 ले सकता हूं? नहीं, मेरे को ई की जो वैल्यू है उससे तो बड़ा देना ही पड़ेगा। ई की वैल्यू 49, तो मुझे यहाँ पे कम से कम 50 तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इन सारे 14 एम्प्लॉयज की वैल्यूज को हम 50 मान लेते हैं। तो इन सबका टोटल कितना होगा बच्चों? 15 टू 14, तो दिस इज 700। और ये होता है अपना 54 इंटू 15, which is I think 810, 27, yes. So 700 plus 810 is 1510 is the answer. So I hope आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इन केस फिर भी कोई आप डाउट फील कर रहे हैं तो आप कनेक्ट करिए, विल लाइक टू सॉल्व योर डाउट्स। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे वे में आपके डाउट्स क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच।